Hello everyone. I welcome you everyone for this last chapter from paper 2. After this our 80% of this paper 2 is over. Few topics are remaining that we will be covering in the coming week. And then we'll start with paper 1. This is basically about me. This is about my qualification and this is the initiative that I have started. That is a free anthropology lecture series for everyone who is willing to study and will actually study. So this is the unit that we are going to start. 9.3 is a last part of the last unit. Now this unit is all about contribution of anthropology in understanding of regionalism, communalism, ethnic and political movement. We'll start with regionalism directly because question comes in 10 markers or 15 markers directly. Regionalism means feeling of a people of certain geographical region. That feeling of sort of a us feeling of people belonging to certain geographical area, we call it as regionalism. Now this is good as well as bad. This is like a two-way sword. It means loyalty to a particular region, for example son of the soil concept etc. या फिर psychic phenomena, इसको हम ऐसे समझते हैं कि this is a psychic phenomena, मतलब ये हमारे ब्रेन में होता है. ठीक है, जैसे कि आप कौन से गांव से हो तो दैट गांव बिकम्स योर थिंग. देन मे बी आपको उतना अटैचमेंट आपके टाउन से नहीं होगा, मतलब तहसील से नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा, शायद स्टेट से हो या कंट्री से हो. सो दैट इज साइकिक फिनोमेना. अगर पॉजिटिव्स देखते हैं तो ये ब्रदरहुड डेवलप करता है, कॉमननेस बढ़ाता है. बट अगर नेगेटिव, अगर रीजनल एस्पिरेशंस को मीट करता है, एक होता है कि डिमांड जो होती है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसको मीट करता है. फिर आता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो कि सेसेशनिज्म, मतलब देश से ही टूट के एक अलग राष्ट्र बनाना हो, जो कि एक थ्रेट होता है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए. अगर हम इस रीजनलिज्म को डिवाइड करते हैं तो एक होता है सुप्रा स्टेट, मतलब ग्रुप आइडेंटिटी ऑफ सेवरल स्टेट. इसको ऐसे सिंपली समझिए कि इंडिया में यूनियन में बीजेपी गवर्नमेंट है एंड स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है. सो ये जो टसल होता है कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश होंगे दे विल कम टुगेदर, ओके, एंड दे विल प्रोटेस्ट ओवर एनी सेंट्रल थिंग, जैसे CAA, NRC, 370 जो भी इशू हो उस पर दे विल हैव द कॉमन थिंग. ओके, NRC पे कॉमन होगा इन सब लोगों का. तो दैट इज़ अ ग्रुप आइडेंटिटी ऑफ सेवरल स्टेट ऑन कॉमन इशू. प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि कल कांग्रेस की सत्ता चेंज हो गई या सेंटर में से बीजेपी की चेंज हो गई. सो दैट इज़ एक्चुअली द इशू बेस ना. तो अगर इशू चला गया तो फिर उनका सुपरा स्टेट जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है. फिर होता है इंटर स्टेट रीजनलिज्म, मतलब डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेलगावी के लिए है. सो दैट इज़ इंटर स्टेट रीजनलिज्म. फिर आता है इंट्रा स्टेट, मतलब पार्ट ऑफ अ स्टेट हैज़ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भा है, गुजरात में सौराष्ट्र है, पूर्वांचल, बोडोलैंड वेस्ट बंगाल में. सो दैट इज़ समथिंग इंट्रा स्टेट. अगर हम इंडिया पे फोकस करते तो why there is regionalism in India? So we see that India is a diverse country. Okay, it is a multilingual, multicast, religion, geography, culture, historic, racial, color of the skin, texture of the hair, language we speak, culture we have, everything is diverse, completely multi facial. So that is the reason for Indian regionalism. And this demand for regionalism is not new. It was 1954 Andhra as a state came into power through reorganization, before reorganization, and then there was a reorganization by Fazal Ali Commission. ठीक है, फजल अली कमीशन. ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमी वाज गिवन टू नॉर्थ ईस्ट रीजन बिकॉज जैसे स्टेटहुड तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय. So that is actually the autonomy. Then statehood, autonomy in 6th schedule, 5th schedule area in northeast region, and then forceful demand such as there are some Vidarbha
separation of Vidarbha from Maharashtra, Purvanchal, Madhya Desh, Vindhya Desh, Kurg, etc. That is the some of the demands. Next is anthropologist. What is the role of anthropologist in understanding regionalism? Generally, regionalism is anti-federal, anti-establishment, okay, and it is actually against the integrated polity. And at the but we see, if India is concerned, we have this thing, we fight, but we have this thing when it comes to our country, that is unity. So यही चीज़ होती है रीजनलिज्म में. डिमांड जो है वो लिमिटेड होती है कि रिसोर्स शेयरिंग तक, कि हमारी डेवलपमेंट करा दो. लैंग्वेज का इशू हो गया, जैसे बोडोलैंड में होगा तो उससे सेटल हो जाएगा, बट दैट इज़ नेवर क्रॉस्ड कि भैया सिसेशनिस्ट अलग होना है, ये नहीं होना. इवन अभी द्राविड नाडु करके इशू है, ठीक है, साउथ में तमिलनाडु में से किसी पॉलिटिशियन ने ये इशू रेस किया था कि हमें पेरियार के रास्ते पे चलने को मजबूर मत करो, वी कैन डू दैट. So they were actually demanding for a separate, that Dravida Nadu is a basically कि सदर्न इंडियन जो पेनिनसुला है, वहाँ की जो भी स्टेट्स है उनका एक सेपरेट सॉर्ट ऑफ थिंग है, मतलब उनका एक सेपरेट कंट्री बना दो. बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ not something which is welcomed in India, because we believe in this thing. We fight, but we believe in this thing, and we never cross the line. And then it is a threat to nationalism. But sometimes regionalism is good, okay. जैसे कि regional aspirations meet होता है, cultural preserve होता है, brotherhood होता है, आइडेंटिटी प्रिजर्व करना होता है. सो दैट इज इन दैट वे इट इज़ गुड. यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछेगा, रीजनलिज्म से थ्रेट नहीं पूछेगा. यूपीएससी विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रीजनलिज्म, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है. सो एडवांटेजेस मैंने जो 2-3 बता दिए, आप वो नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है. उसके बाद असर्शन ऑफ सेपरेट एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें उसी में आएंगी. assertion of culture, assertion of language, tradition, economic interest, ethnicity, developmental deficit, ये सारी चीज़ें 6-7 पॉइंट आपके रेडी हो गए. अगर हम फैक्टर्स देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण रीजनलिज्म कॉज होता है. डेवलपमेंटल डेफिसिट, एलिनेशन की फीलिंग ऑफ लेफ्ट ओवर, लैक ऑफ डेवलपमेंट. अगर हम इसको स्पेसिफिक समझते तो लैंग्वेज में जैसे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बहुत सी लैंग्वेजेस है. इंडिया इज़ लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री विथ लैंग्वेज. देन कास्ट, hundreds of caste, all the religion of the world. Historically we have like a home kingdom in the northeast, Ashoka in the eastern part, Cholas in the southern, Hoysala in this particular middle, Pallava in the peninsula. Then there's like Chandela वगैरह, so Solanki etc. So you see there is difference. Politically we have unrest and turmoil in many states, like even in case of Maharashtra there is volatile situation sometime. Southern India people, particularly in Tamil Nadu, this thing is there. Politicians are there. People might not be like that, but politicians are actually spreading this turmoil. ठीक है. फिर economic, for example, there is lack of economic growth, so health indicator is poor, education is poor, and hence jobs are also poor. Even geographical reasons are there because these are cut off from the mainland. So the next obvious question comes is this, that what are the positive impacts, because it's not just the negative impact, we also have the positive impact. So what is the positive impact? Foster competition, okay, competition. उसके बाद important role in nation building, self determination, okay, right to self determination, protection of diversity, autonomy is respected, bottom up approach, increase in participation, and grievance redressal. That is the positive impact. But that is not only, because there are also some of the negative impact. Disintegration, external factors like Pakistan and non-state actor will take benefit out of it, right? Then there is protest, causes disruption. Sometimes it also leads to terrorism, and that is through external factor, okay. And then there is instability and threat to integration and secessionism. These are certain issues associated with regionalism. Then there is a little thing, regionalism as a sub-national movement, because see, national movement is a movement where we focus on a national unity, but sub-national movement is something which
we do not bother about national unity, we care about our immediate like state identity. So first it is against nationality. Second, this diversity acts as a ground for secessionism, matlab separatism, okay, and that also includes economic, political and administrative work. Then it also is sort of a restrictive political movement detrimental to our unity. It breeds localism, isolationism and separatism. It also causes disintegration of state, power struggle and then separate statehood. So these are certain issues as far as the regionalism is concerned, and for that this part is important, like geography, history, linguistic, culture, ethnicity, ये सारी चीज़ें जो है वो रीजनलिज्म होने के लिए कंट्रीब्यूट करती है. एग्जांपल्स देखते हैं जैसे विदर्भ, बोडोलैंड, द्राविड़ा नाडु, खालिस्तान, ग्रेटर नागालैंड, ठीक है, मिज़ो, ग्रेटर मिज़ोरम, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया as far as the regionalism is concerned. Now communalism means it is an ideology which believes that one religion have common social, economic and political interest. Now if we study the characteristics of this particular thing, that is communalism, is that it is opposed to secularism, it is against integration, it fosters hatred, it has prejudice, ठीक है, violence is basically the outcome, it is also against pluralism, it is actually to promote the selfish interest and it breeds this feeling of mistrust, rivalry and suspicious. अगर हम हमारी इंडिया में भी देखते हैं, so just assume you are a Hindu, okay, so just this thing, okay, I'm saying it, assume you're Hindu or a Muslim. Now if you assuming yourself as a Muslim, think about a Hindu, what it comes, you know, you'll find this thing, hatred, prejudice, violence, you know, pluralism, etc. And same thing happens with the opposite one. Why that is happening? The reason is very simple, because brain have been whitewashed for a lot of political reasons by a lot of religion based political parties, and that has caused, you know, some sort of a damage to human psychology, and that has been a threat to actually the fabric of Indian soil. अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म, तो 3 टाइप के कम्युनलिज्म होते हैं. एक होता है कि कम्युनल मतलब क्या, तो सेम ग्रुप हैव सेम इंटरेस्ट, दैट इज गुड. लिबरल इज लाइक डिफरेंट ग्रुप हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, मतलब रिलीजन कम्स फर्स्ट एंड नेशन कम्स सेकंड. थर्ड होता है एक्सट्रीम. इसमें एक सिंपल चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑफ वन ग्रुप इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर. मतलब एक सिंपल चीज़ है कि अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे ब्लैक कलर जो है वो, मान लो कि मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, बट फॉर यू ब्लैक इज समथिंग विच इज अनहोली, ठीक है, दैट इज नॉट गुड. सिंपल चीज़ है. सो दैट विल बिकम लाइक आई कांट बी विथ यू, बिकॉज तुम ब्लैक, विदाउट ब्लैक यू कांट लिव एंड विथ ब्लैक आई कांट लिव. सो दैट इज एक्सट्रीम. इंडिया में देखते हैं, इंडिया में कम्युनलिज्म की जो शुरुआत होती है वो होती है कॉलोनाइजेशन से. ये ब्रिटिशर्स का किया कराया है, डिवाइड एंड रूल. फिर उसके बाद रिलीजन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, रूलर अगेंस्ट रूलर, रीजन अगेंस्ट रीजन, जिसके कारण हमने इंडिया में राइट्स देखे, कम्युनल पॉलिटिक्स देखी, वोट बैंक पॉलिटिक्स देखी, रिलीजियस जील देखी, एक्सपांशन में जैसे कंट्री मतलब और चीज़ें जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप बनाओ, उसका एक्सपांशन करो, लोग ऐड करो, दैट इज़ द थिंग. पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में भी कम्युनलिज्म हैज शोन अ वेरी बैड फेस, ठीक है. एक्चुअली इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसने खुद को एक रिपब्लिक और सॉर्ट ऑफ सेक्युलर देश, जिसमें कोई स्टेट का रिलीजन नहीं था, इट वाज अ स्टेट, इट वाज अ सेक्युलर स्टेट. फिर आता है पार्टीशन, फिर आती है वॉर्स, और उसके बाद भी पाकिस्तान के पास जब दोनों ईस्ट एंड वेस्ट एरिया चला गया था, स्टिल रिलीजन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है. यू नो, रिलीजन का काम क्या होता है? रिलीजन का काम होता है कि यूनाइट पीपल, ओके,
इवन इफ आई डोंट अग्री विथ यू इट डजेंट मीन कि आई डिसअग्री विथ यू ना, ऐसे थोड़ी होता है. इफ आई डोंट अग्री विथ यू, आई अग्री विथ समथिंग एल्स. ठीक है, दैट इज व्हाट माई बिलीफ आर. You believe in God, I believe in God, and that is the thing. That is the simplest thing that can happen. But अगर आप देखते हो, अगर religion was actually the ground, तो फिर कभी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता ही नहीं. But that didn't happen. Bangladesh became a separate country. Why? Because this quest started with religion, कि a separate state for Muslim, but then it was all about this exploitation. It was all about this, superiority of western people over eastern Bangladeshi, and then that thing happened. फिर इंडिया में देखते हैं कम्युनल इंसिडेंसेस, कन्वर्जन होता है. फिर कन्वर्जन के पास घर वापसी मूवमेंट होती है, शुद्धि मूवमेंट होती है. अब यहाँ पे लव जिहाद नाम की चीज़ें ऐड हो गई है, काउ लिंचिंग, ठीक है, ये चीज़ें आ गई. फिर मॉब लिंचिंग भी हो गई है. फिर अब जब पता है कि टू कम्युनिटीज़ आर लिविंग टुगेदर, कि कुछ चीज़ें हैं जो एक कम्युनिटी के लिए सेंसिटिव है, तो एक सिंपल लॉजिक कहता है कि बी कम्युनिटी ने उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. इफ़ इट इज़ नॉट लाइक लाइफ, ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है, तो इट शुड बी अवॉइडेड. एंड सेम गोज विद कम्युनिटी ए. अगर कोई चीज़ करने से, बी के करने से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इट शुड जस्ट बी लेफ्ट दैट वे. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि साइलेंस इज़ ऑल्सो एन आंसर टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ द थिंग. फिर इंडिया में कम्युनल मूवमेंट में खालिस्तानी मूवमेंट आती है, बाबरी मस्जिद आती है, गोधरा हत्याकांड आता है, मुजफ्फराबाद, दिल्ली, ये सारी चीज़ें आती है. इसका रीज़न है सबसे रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म और ऑर्थोडॉक्सी. ये तीन चीज़ें, इसके कारण लिटरली कंट्री इज बीइंग पुश्ड टूवर्ड्स एरिया जहाँ पे उसको नहीं जाना है शायद. रीजंस क्या है कम्युनलिज्म का? सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सटर्नल जो सोर्स है हमारा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान. तो सोशल मीडिया थ्रू इंडिया में रेडिकलिज्म फैलाता है. कहीं कहीं के स्टेट स्पॉन्सर्ड वीडियोस जो है वो गांव, टाउन वगैरह में सर्कुलेट करवाता है. एंड दैट लीड्स टू अ बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज हेट्रेड इज समथिंग जो कि उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, इट ग्रोज. एंड सेम थिंग हैपन्स इन इंडिया. फिर है कि फेलियर ऑफ स्टेट. इंडियन स्टेट का एक्चुअली फेलियर है कि हम अभी तक हमारी माइनॉरिटीज़ या मेजॉरिटी को अश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं. सो दैट इज़ आर फेलियर एज अ स्टेट. देन वोट बैंक पॉलिटिक्स, कम्युनल वोटिंग, ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजुडिसेस है, और ये फंडामेंटलिस्ट ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ लीडरशिप, ये इन चीज़ों के कारण कंट्री इज़ एक्चुअली हैविंग दिस कम्युनलिज्म. इसका इम्पैक्ट क्या होता है फिर इंडियन सोसाइटी पे? वायलेंस बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है. वायलेंस के कारण जो डिसरप्ट हो रहा है सोसाइटी में, लाइफ वगैरह, लोगों की प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसमें लाइफ डिस्टर्ब हो रही है. प्रोटेस्ट के कारण ग्रोथ रुक रही है. सेसेशनिज्म मतलब एक अलग सेपरेटिस्ट टाइप ऑफ फीलिंग डेवलप हो रही है मन में. पीस जो है कम्युनिटी का वो डिस्टर्ब हो रहा है. सोसाइटी में डिवीजन हो रहा है, निग्लिजेंस हो रहा है, एंड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ग्लोबलाइजेशन. अब लास्ट टॉपिक इस पूरे हमारे पेपर 2 का इज एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट. एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट को एक सिंपल तरीके से समझते हैं. एथनिक क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन कल्चर एंड लाइफस्टाइल एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, डिसेंट, रेस, लैंग्वेज, कलर. so that is ethnic, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन कल्चर. एथनिसिटी क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस और फॉर्म ऑफ ग्रुप मोबिलाइजेशन थ्रू सेलेक्ट यूज ऑफ एथनिक सिंबल. मतलब एक ग्रुप है जिसका कॉमन कल्चर है, उस कॉमन कल्चर के सिंबल्स को दिखा के उन लोगों को मोबिलाइज करना, मतलब उन लोगों को उत्तेजित करना है फॉर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्पस. दैट इज़ एथनिसिटी. एथनिक मूवमेंट क्या होता है कि कॉमन एथनिसिटी आर अराउज्ड. कैसे कि भैया अगर आप मान लीजिए आप हिंदूज हैं, तो काउ कैन बी थिंग जिससे कॉमन एथनिसिटी अराउज है. अगर आप मुस्लिम हैं तो दिस लेडी, आई डोंट नो, दिस नुपुर शर्मा, शी कैन बी वन ऑफ द थिंग कि
कैन गेट अराउज्ड. सो दैट इज़ द थिंग बाय अपील टू द कॉमन एंसेस्टर. ये भी होता है कि आप आपके जो पूर्वज है उनके बारे में सोचें. बट द प्रॉब्लम अबाउट एंसेस्टर्स इन इंडिया इज़ लाइक इफ़ यू विल गो बैक टू से 1200 years, then there was only one religion in this subcontinent, Hinduism and Buddhism, which was actually the one religion. So common ancestor, this process allows blood bond. Okay, in India that is the thing. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी. माइनॉरिटी 3 टाइप की होती है. एक होती है नेशनल माइनॉरिटी, एक होती है जो बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड होती है, फिर रेफ्यूजी, उनको माइनॉरिटी कहते हैं, और देन इमिग्रेंट जो बाहर देश से इंडिया में आता है. कॉजेस क्या क्या है एथनिक मूवमेंट के? अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी के पास बहुत ज़्यादा पावर है. मेजॉरिटी को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ को बहुत सी चीज़ें, बहुत से फ़ायदे जो है मिल रहे हैं. सो दैट इज़ द थिंग. देन फीलिंग ऑफ लेफ्ट ओवर आउट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. तो बहुत बार ऐसे होता है कि माइनॉरिटीज़ को लगता है कि लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग आती है. फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, जैसे AIMIM नाम की पार्टी इंडिया में, वो just go for Muslim votes. ठीक है, they don't concern about anything else. They want कि their polity to be based on Muslim votes, and उसके कारण they radicalize use fundamentalist thing, and that is actually the detrimental for the social fabric of country. फिर interest group politics. एक एक अपना अपना ग्रुप अपना अपना इंटरेस्ट ढूंढेंगे, अपने वोट बैंक्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने प्रिविलेज लेंगे एंड दे विल बी हैप्पी. फिर मेजॉरिटेरियन जो है उनका एटीट्यूड माइनॉरिटी के टूवर्ड्स, ठीक है, वो भी बहुत मैटर करता है. दैट इज़ ऑल्सो कॉज. फिर दिस बायस्ड पॉलिसीज़, बहुत से लोगों को लगा कि NRC, CAA, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, ये सारी चीज़ें जो है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट है. दैट इज़ समथिंग वाज फेल्ट बाय पीपल, इवन द अपोजिशन पार्टी इन इंडिया. सो दैट इज़ अ बायस्ड पॉलिसीज़, example of their feelings of biased policy. Then failure of state at affirmative action. तो ये affirmative action ना लेना is also failure of state. Then there is a feeling of deprivation, and this deprivation feeling, right? Then there is alienation and insecurity. So that is actually one few of the many causes for ethnic movement. अगर हम टाइप्स देखते हैं एथनिक मूवमेंट के, तो एथनो रेशियल, एथनो रिलीजियस, एथनो लिंग्विस्टिक, एथनो नेशनल एंड एथनो रीजनल. एथनो रेशियल में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मंगोलियन फीचर्स के इंडियंस हैं. सो दीज आर एक्चुअली दे फील डिफरेंट फ्रॉम द मेन लैंड इंडिया. रिलीजियस में अगर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स एंड सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिज्म. देन लिंग्विस्टिक में वेस्ट बंगाल. सो वेस्ट बंगाल में बोडोलैंड वाला इशू आपको पता होगा, तो वेस्ट बंगाल में बंगाली एंड वहाँ पे असामी, सॉरी आई एम नॉट श्योर बट दैट्स द थिंग. उसके बाद कुर्द, अगर नेशनल देखते हैं तो कुर्दिस्तान, कुर्द जो कम्युनिटी है, तो दे वांट द कंट्री कुर्दिस्तान बट अदर्स डू नॉट वांट टू गिव द लैंड. रीजनल में विंध्याचल, ठीक है. तो दीज आर एथनिक मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल. देन एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखते हैं. यूजुअली क्या होता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स के लिए आपको बेनिफिट चाहिए, ये मेन फोकस होता है कि टू टेक द बेनिफिट फॉर अ पर्टिकुलर, फोकस ऑन गेटिंग बेनिफिट्स फॉर अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप. एंड देन दिस एथनिक क्राइटेरिया टू मोबिलाइज इट्स मेंबर लाइक रिलीजन और लैंग्वेज. तो फिर जैसे ऐसे ही क्राइटेरिया इंडिया में बहुत बार यूज़ होता है कि सेपरेट लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज अलग है, अपना रिलीजन अलग है, अपना कल्चर अलग है, सो लेट्स मेक इट एज अ ग्राउंड. फिर उसके बाद फेलियर टू इनकॉर्पोरेट चेंजिंग नीड, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, जैसे आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि विल गो टू एनी प्लेस, आपकी नीड्स चेंज होती है, दैट इज़ ऑल्सो दिस थिंग विद पीपल. फिर कश्मीर की आप केस स्टडीज़ में ऐड कर दो, नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्सट्रीमिस्ट की ऐड कर दीजिए, एंड खालिस्तान वाली केस स्टडी ऐड कर दीजिए. असम, बंगाली माइग्रेंट्स जो थे वो वेल ऑफ थे, उनके पास ज़्यादा पैसे थे, सो यू नो असम का ट्रेडिशन कल्चर ख़त्म हो रहा था, सो दैट इज़ अगेंस्ट द बंगाली इमिग्रेंट. देन बोडोलैंड मूवमेंट वाज देयर, एंड देन क्रिएशन ऑफ नागालैंड. दिस इज इट. एंड देन दिस टू थिंग्स आर देयर, दैट इज़ मिज़ो मूवमेंट, इंसर्जेंसी, ठीक है. फिर मिज़ो नेशनल फ्रंट आता है सामने, एंड देन देयर इज़ अ रिलेटिव पीस.
देन गोरखालैंड जहाँ पे बेसिकली गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ये चीज़ काम आती है। नॉर्दर्न बंगाल में कामतापुरी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और माओइस्ट ग्रुप, इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है दैट इज़ ऑल्सो एथनिक movement and ethnic political, and then Naga movement like NSCN Isa Musa and NSCN Keplang. These are some of the examples of it. So now paper 2, around 90% of, see I'm saying this thing, around say chalo 80% of Anthro P2 is done. Now हमारा एक छोटा सा यूनिट बचा है, आई थिंक यूनिट 7, ठीक है, and we'll be doing that. Even some part of year 6 is remaining, and 1 to 3 we already have completed. So these are the only 2 units which are remaining, and we'll be doing it. I will just tell you, keep studying hard and don't panic. Our course will be over before February, so just keep studying, that's it.